সময় না বেরিয়ে আর না কোনো খোঁজ নিয়ে মিনি সুইজারল্যান্ড যাওয়াতে আমরা কোন বিপদে পড়লাম আজকে এই ভিডিওই তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চলেছি। নমস্কার, আমি পুষ্পিতা আর তোমরা দেখছো পুষ্পিতাস লাইফ আনকাট। তো তোমরা দেখতে থাকো। এই ভিডিওটা একটু লেন্দি হতে চলেছে, তার জন্য আগে থেকে দুঃখিত, কিন্তু না দেখলে অনেক কিছু মিস করে যাবে। আর এই ভিডিওয় অনেক কিছু কাশ্মীর সম্পর্কে ইনফরমেশনও রাখা হলো, যেটা তোমাদের আগামী দিনে কাশ্মীর ট্রিপে অনেকটা হেল্প করে দেবে। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকের শ্রীনগরে আমাদের 5th ডে, মানে আজকে আর শ্রীনগরে আমরা থাকছি না, আমরা যাচ্ছি হচ্ছে পেহেলগাঁওয়ের দিকে। শুরুটা করব ব্রেকফাস্ট দিয়ে। যে হোটেলে ছিলাম সেই হোটেল থেকে এবার চেক আউট করে যাচ্ছি। চলো দেখতে থাক। প্রত্যেক সকালের মতন শুরুটা করলাম ব্রেকফাস্ট দিয়ে। তো ব্রেকফাস্টে যথারীতি যেগুলো থাকে মোটামুটি সেগুলোই ছিল। তো আমার তো তোমরা জানো আমার স্পেশাল মেনু থাকে ম্যাগি। তো আজকের ম্যাগিটা আমি স্পেশালি বলে দিয়েছিলাম একদম হালকা করে বানাতে, তো ওরা আমাদের জন্য রেডি করে দিয়েছিল। এবারে আমরা যাচ্ছি পেহেলগাঁওয়ের দিকে। তো আজকের একটু অন্যরকম ড্রেস পরলাম, গাউন পরেছি, জানি না ঠান্ডাও লাগছে, আজকে ঠান্ডাটা বেশ আছে। তো এই হোটেলটা খুব ভালো লেগেছে, তোমরা যদি চাও অবশ্যই এসো, খুব পছন্দ হবে আর খুব ভালো লাগবে। তো আমাদের জার্নিটা শুরু হলো হোটেল থেকে। আমরা যাচ্ছি পেহেলগাঁওয়ের দিকে। তো পেহেলগাঁওয়ে এখানের চেয়ে বেশি ঠান্ডা আছে, সেটাই শুনলাম। আচ্ছা তনুশ্রী, কেমন লাগছে? এনজয় করছো? মজা লাগছে? পেহেলগাঁও বা পেহেলগাঁও যেটাই আমরা বলে থাকি না কেন, এটি শ্রীনগর থেকে প্রায় 100 কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। তো যাওয়ার পথে আমাদের যে যে স্পটগুলো আমরা ভিজিট করেছিলাম তার মধ্যে থেকে অন্যতম পাম্পোর বা পাঁপড়, যেটাই তোমরা বলো না কেন, এটা হচ্ছে স্যাফরনের গার্ডেন। হারভেস্টিং ওখানেই হয়। সেটা আগে ভালো করে আমরা যখন কিনতে গিয়েছিলাম সেখানে সব ওনাররাই ভালো করে আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছিল। তো বেশ সুন্দর জায়গা, পুরো 5 কিলোমিটার এলাকা জুড়ে এখানে স্যাফরনের গার্ডেনিং হয়, যেটা আমরা আসার পথে দেখেছিলাম। এই পাম্পোর একটি ছোট্ট শহর, যেটি কিন্তু শ্রীনগর থেকে প্রায় 13 কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। তো পেহেলগাঁও যাওয়ার পথে আমরা একটা শপে দাঁড়িয়েছি, কারণ আসার সময় আমাদের কেনাকাটা করার টাইম থাকবে না, সেই জন্য এই শপ থেকে আমরা কিছু জিনিস কেনার ইচ্ছে আছে। তো দেখিয়ে দিচ্ছি শপটার নাম। তোমরা পেহেলগাঁও যাওয়ার পথে এখানে অনেক এইরকম শপ দেখতে পাবে যেখানে ড্রাই ফ্রুটস আর স্যাফরন পাওয়া যায়। তো আমরা এই শপটার ভেতরে ঢুকলাম এবং নানান রকম ড্রাই ফ্রুটসের বিষয়ে, স্যাফরনের বিষয়ে জানলাম, তার সাথে কেনাকাটাও কমপ্লিট করলাম। इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे। आप बैठो आराम से, मैं बताता हूँ। देखिए, केसर ऑल ओवर इंडिया में जो है वो खाली कश्मीर में होता है, ये सबको पता रहता है। लेकिन कश्मीर भी बहुत बड़ा है, पूरे कश्मीर में केसर नहीं होता है। ये पर्टिकुलरली 5 किलोमीटर का एरिया है जहाँ पे इसकी कल्टिवेशन एंड हार्वेस्टिंग होती है। इस गाँव का नाम है पांपोर, सुना मत होगा आपने, PAMPOR, पांपोर। अगर आप गूगल सर्च भी करेंगे ना सैफरन टाउन ऑफ कश्मीर, तो इसी गांव का नाम आएगा। अगर आप इस साइड से आए होंगे भी तो सैफरन फील्ड्स भी देखे होंगे आपने। अभी फ्लावर भी चल रहा है, हार्वेस्टिंग टाइम में भी चल रहा है। ये सैफरन का फ्लावर है, अगर देखा होगा आपने, फ्लावर रहता है सैफरन का। ये 3 इंची का फ्लावर होता है। एक फ्लावर में 6 स्टिग्मास रहते हैं। 3 रहते हैं रेड कलर के, 3 रहते हैं येलो कलर के। ये जो रेड कलर का 3 है यही केसर होता है। रेस्ट जो येलो एंड पर्पल पार्ट है वो यूजलेस है, किसी काम का नहीं है। अब दुनिया में अगर कोई भी चीज़ हो, कितना भी महंगा चीज़ हो, हर किसी चीज़ का डुप्लीकेट आता है मार्केट में। आप टूरिस्ट स्पॉट्स पे जाओगे, जैसे पहलगाम, गुलमर्ग, डल लेक, वहाँ पे केसर की ना तो कल्टीवेशन हार्वेस्टिंग होती है, वहाँ पे फेरी वाले बेचते हैं केसर 100-200 रुपये का। वो जो ये येलो पार्ट रहता है ना फ्लावर में यूजलेस, उस पर रेड कलर कोटिंग करके केसर के नाम से बेचते हैं टूरिस्ट। अभी आप उस गांव में हो जहाँ पे निकलता है, यहाँ ओरिजिनल नहीं मिलेगा तो समझो और किसी जगह नहीं मिलेगा। बाकी इसका एक्सपायरी नहीं होता है, बस फ्रिज से बाहर रखना है इसे। फ्रिज में स्टोर नहीं करना है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में
कबर्ड ड्रॉअर में रखोगे 10 to 20 ईयर्स की गारंटी है। और इसको ओरिजिनल पहचानने के कुछ तरीके रहते हैं, कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो ओरिजिनल कैसे और डुप्लीकेट कैसे। 4 तरीके होते हैं ओरिजिनल पहचानने के केसर। पहला जो आपने इसका स्मेल लिया ना, जो इसका एरोमा रहता है, हम इसे दिन में 1000 बार खोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये केसर लेंगे, अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे यूज़ करेंगे, आफ्टर 10 ईयर्स भी आप उसका स्मेल चेक करेंगे ना, उस स्मेल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये स्मेल ऐसा ही होगा। जो डुप्लीकेट वन में यूज़ होता है ना, उसमें परफ्यूम एसेंस का यूज़ होता है, वो आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम खत्म हो खोलने पर बंद होने पर निकल जाता है जी। दूसरा पहचानने का तरीका है, जो सैफरॉन में स्टिग्मा है ना रेड वाली, ये आप देखो फ्रंट साइड इसका थिक है, बैक साइड थिक है। अच्छा, सेम इसमें ऐसा होना चाहिए, अगर एक ही साइज का होगा वो आर्टिफिशियल बनाया होता है। ये देखिए हर कोई स्टिग्मा देखिए, फ्रंट साइड थिक होगा, बैक साइड थिक है, ठीक है। ये होगी दूसरी पहचान, ठीक है। तीसरा पहचानने का तरीका है, जब ये केसर आप टेस्ट करेंगे ना, जीभ पे डालेंगे, आगे वाले दांतों से इसको च्यू करेंगे आप, ये टेस्ट में हल्का सा बिटर आएगा। अगर स्वीट आया वो कैसे डुप्लीकेट रहता है नहीं। और जो चौथा पहचानने का तरीका है, वो सबसे बेस्ट वे है ओरिजिनल केसर पहचानने का। जब ये केसर आप किसी भी लिक्विड फॉर्म में डालेंगे ना, चाहे आप पानी में डालेंगे इसे या दूध में डालेंगे, ये कुछ टाइम के लिए फ्लोट करेगा, डायरेक्टली नीचे नहीं आएगा। अगर डालते ही नीचे आ गया, वो केमिकलाइज्ड रहता है। और ये पानी और दूध का कलर आराम से येलो कर देगा, लेकिन सैफरॉन फिर भी रेड ही रहेगा। सैफरॉन का खुद का कलर चेंज नहीं होता है। ये आप बॉयल अगर करेंगे 1 घंटा 2 घंटा भी, ये डिजोल्व नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा, ये ऐसा रेड ही रहेगा, लेकिन पानी और दूध का कलर येलो। जैसे मैंने बोला, इसका एक्सपायरी नहीं है, बस फ्रिज में नहीं रखना है इसे। और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स रहते हैं, जैसे आई साइटनेस के लिए अच्छा रहता है, स्किन ग्लोनेस के लिए काम आता है। कश्मीर में हमारी माँ बहनें जो प्रेगनेंसी टाइम में यूज़ करती है, उसमें भी हेल्पफुल रहता है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ रहती है इसमें, हार्ट के लिए अच्छा रहता है, ब्रेन के लिए भी अच्छा रहता है, अल्जाइमर डिजीज़ को क्योर करता है, अस्थमा को क्योर करता है। ये आप दूध के साथ यूज़ कर सकते हैं, पानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। घर में कोई भी रेसिपी बनाओगे आप, मिठाई, खीर, बिरयानी वगैरह, उसमें डाल सकते हैं आप। एक हो गया केसर शौक के लिए यूज़ करना, दूसरा हेल्थ पर्पज़ के लिए। शौक के लिए आप कभी कभार खीर बिरयानी में डालोगे ओकेजनली, तो वो शौक के लिए होगा। दूसरा, अगर हेल्थ पर्पज़ के लिए केसर यूज़ करना है, आप रेगुलर बेसिस पे इसे यूज़ करना है। ये बेनिफिट्स तब आते हैं जब आप केसर रेगुलर बेसिस पे यूज़ करेंगे। नॉर्मल सुबह दूध का गिलास लेना है, उसमें कम से कम 5 to 6 स्ट्रैंड्स डालनी है। तो थोड़ा सा वेट करना है 5-6 मिनट, जब तक कलर आ जाएगा तो फिर पीना। आप इसे लाइफ लॉन्ग भी ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता। ये तो वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी 3 months to 9 months और रेगुलर बेसिस सैफरॉन यूज़ करे, नॉर्मल डिलीवरी और बेबी हेल्दी आने के चांसेस। ये इसका पैकिंग है 20 ग्राम्स, ये 10 ग्राम्स, ये 5 ग्राम्स। ये कहवा पी लीजिए आप, ये बहुत ही बढ़िया है भैया। इसके बारे में यही भी बताऊंगा। वो सर, ये रिटेल में 3.5 लाख रुपए किलो है। हम फार्मर्स हैं, हमारी खुद की खेती होती है, हम होलसेल में 3 लाख रुपए किलो बेचते हैं, 300 रुपीज़ पर ग्राम। ये 5 ग्राम हो गया 1500, 10 ग्राम हो गया 3000, 20 ग्राम हो गया 6000। ठीक है, ये हो गया केसर के बारे में इंफॉर्मेशन। और इसके बाद केसर के बाद जो फेमस प्रोडक्ट आता है, वो है यहाँ का शिलाजीत। इसके बारे में सुना होगा आप। देखिए, नॉर्मल जो इस चीज़ का कंसेप्ट है ना बाहर, वो नेगेटिव वे से प्रमोट होता है, लेकिन ऑर्गेनिक शिलाजीत के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स रहते हैं। वो जो शिलाजीत आपने सुना होगा, आपने ये भी सुना होगा कि बाहर बोलते हैं, वो जो शिलाजीत में ऐसे खींचते हैं तो वो तार बनता है। वो एक्चुअली गुड़ की प्रॉपर्टी रहती है। गुड़ को जब हीट करते हैं ना, गुड़ समझते हैं ना आप, गुड़ को जब हीट करते हैं, अगर उसको खींचेंगे उसमें वो तार बनता है, और उसमें एलोपैथिक मेडिसिन का यूज़ होता है। इस वजह से वो नेगेटिव वे से प्रमोट किया जाता है। ये होता है शिला मीन्स पत्थर, जीत मीन्स पसीना, इसको स्वेट ऑफ रॉक्स कहते हैं। ये एक्चुअल में होता है डिकम्पोजिशन ऑफ हर्बल प्लांट्स। जो हाई आल्टीट्यूड माउंटेन्स में हर्बल प्लांट्स रहते हैं, वो जब डिकम्पोज होकर ब्लैक रॉक्स पे आते हैं, वो मिनरल्स कलेक्ट करके शिलाजीत बनते हैं। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कितना भी पुराना अगर बैक पेन हो, जॉइंट पेन, नी पेन, अर्थराइट्स का प्रॉब्लम, उसको कंट्रोल करता है। ये शुगर डायबिटीज़ कंट्रोल होता है इससे, वेट लॉस जर्नी में हेल्प करता है, बोन डेंसिटी से इंक्रीज होती है, थायराइड और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। ये लेने का तरीका क्या है, ये पेस्ट फॉर्म में होता है, ये देख सकते हैं इसे। अच्छा, ये होता है पेस्ट फॉर्म। अच्छा। यहाँ पे अभी विंटर्स शुरू हो रहे हैं, अभी टेम्परेचर रात में डाउन रहता है। आप जो बाहर इसे लेंगे, ये इससे भी पेस्ट फॉर्म में हो जाएगा। आप विद द हेल्प ऑफ स्पून या विद द हेल्प ऑफ योर हैंड इसमें से पी साइज पोर्शन लेना है। मटर समझते ना, मटर जितना साइज लेना है, वही शाम के टाइम गिलास ऑफ मिल्क लेना है या गिलास ऑफ वाटर लेना है।
गुनगुना ल्यूकवार्म, अच्छा उसमें डाल के ये खुद डिजॉल्व हो जाएगा। या ये सोने के टाइम आफ्टर डिनर, तो डिजॉल्व जब हो जाएगा तो इसको पीना है। ये 3 मंथ्स में कोर्स कंप्लीट होगा। उसके बाद आपकी मर्जी, आप गैप भी रख सकते हो 2-3 साल तब तक लेने की जरूरत इसमें है। ही रखना पड़ेगा नहीं, फ्रिज में बाहर, फ्रिज के बाहर रखना है। 5 साल से ऊपर मेल हो फीमेल हो कोई भी ले सकता है। अच्छा अब कोई अगर खाली पर्टिकुलरली वेट लॉस के लिए लेता है, कोई जिसका ओवरवेट होता है बॉडी, तो खाली वेट लॉस पर्पज़ के लिए तो मॉर्निंग में लेना है, क्योंकि जब बॉडी दिन में एक्टिव रहती है तो फैट को बर्न करना है। कि बाकी बेस्ट टाइमिंग अच्छा ये प्रेग्नेंट औरत पी सकता है? जी मैडम, ये प्रेग्नेंट औरत पी सकता है? प्रेग्नेंट के बगैर मैम, प्रेग्नेंट लेडी के बगैर। बिना कोई pregnancy। हार्ट पेशेंट होगा वो भी नहीं, हार्ट पेशेंट होगा वो भी नहीं। प्रेग्नेंट लेडी में। बाकी नॉर्मल आप उसके बाद आप ले सकते हैं, डिलीवरी होने के बाद या जिसको उसके बाद आप ले सकते हैं। इसका एक्सपायरी भी नहीं है। अगर आप फॉर एग्जांपल अभी लेंगे, आप अभी कोर्स खा नहीं सकते, आप अगर इसे 10 साल भी रखेंगे ये ख़राब नहीं होगा, एक्सपायरी नहीं होगा। ये हो गया सैफरन एंड शिलाजीत के बारे में। दोनों चीज़ों को फ्रिज से बाहर रखना है, ना इसका साइड इफेक्ट एक्सपायरी है, ना इसका साइड इफेक्ट है एक्सपायरी। इसका रेंज कितना है? ये 30 रुपीज़ ग्राम रहता है। ये कंप्लीट कोर्स होता है 7500। ये कितना का है? 7500। अच्छा ये यहाँ पे बेनिफिट्स भी लिखे हुए हैं, आप ये भी पढ़ सकते हैं। आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम उसमें स्मेल आ जाता है या कड़वाहट आती है खाने में, उसमें ये चीज़ निकाला होता है। जो मेन चीज़ होता है ना, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को। ये देखिए आप, तेल निकल रहा है। अच्छा ये देखिए आप ये ऑयल निकाला रहता है उसमें। उसमें प्रोसेस क्या होता है, उसमें स्टीम से ऑयल निकाला होता है। अखरोट बादाम का शेप भी नहीं बिगड़ता है। अखरोट एक रेट में बेचते हैं, ऑयल एक रेट में बेचते हैं, क्योंकि कैलिफोर्निया में टेक्नोलॉजी है। आप इसे टेस्ट कीजिए, आपको टेस्ट से भी डिफरेंस पता चलेगा। सेम यहाँ के बादाम में, जो नॉर्मल आप बादाम बाहर खाते हैं वो आप पानी में सोख करके खाते हो आप, जो 700-800 kg लाते हैं, वो कैलिफोर्निया से आते हैं। उसमें इसमें भी मेन चीज़ होता है ऑयल। ये देखिए, ये उस बादाम में नहीं होता है। अगर आप यहाँ से घर जाके चेक भी कर लेंगे, ये देखिए, इसको सोक करने की जरूरत नहीं है वाटर में, आपको डायरेक्टली कंज्यूम करना है। अगर आप आदत, छिलका बोलता है। अगर आप आदत है ना, वो कोई दिक्कत नहीं मैडम। अगर आप आदत है भिगो के खाने की, लेकिन ये जो ऑयल इसमें है ना वो पानी में चला जाएगा। वो पानी फिर पीना है, पानी को फेंकना नहीं है। एक हो गया आप ओवरनाइट सोक करके रखेंगे बादाम को, दूसरा हो गया आप धोने के लिए थोड़ा 1 मिनट 2 मिनट वो कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं। और ये बेरीज हैं, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, ये चेरी, ये क्रैनबेरी, ये एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं इसमें। ये यूटीआई के लिए अच्छा रहता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये ब्लूबेरी, इससे हीमोग्लोबिन, किसके लिए? यूटीआई के लिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अच्छा ये हीमोग्लोबिन इंक्रीज होता है इससे, ये ब्लड प्यूरिफायर है। आप सब में से टेस्ट कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे तो आप उसके बाद आता है कहवा। जो आपने कहवा अच्छा लगा आपको? बहुत ही बढ़िया था। तो अगर आपने किसी जगह पिया होगा ना थोड़ी सी स्पॉट है आपको सर क्या चीज़ होता है। ये जो कहवा है ना, कश्मीरी कहवा, इसका ओरिजिन ना यहीं से हुआ है। जो ये KAHWA हम कश्मीर में बोलते हैं 11 को, एंड वहाँ मीन समथिंग डिलीशियस, क्योंकि इसमें 11 स्पाइसेस रहते हैं जिससे ये बनता है। 11 स्पाइसेस प्रॉपर नहीं रहेंगे ना तो कहवा अच्छा बनेगा नहीं। इसके हेल्थ बेनिफिट्स रहते हैं, जैसे कोल्ड अगर होगा, फीवर, कफ, थ्रोट इन्फेक्शन, उसको कंट्रोल करता है। ये इसका स्मेल भी आप चेक कर सकते हैं। ये बनाने का प्रोसेस में आपको समझाता हूं कैसे बनाना है। आप इसे सेम ऐसे ही घर में बना सकते हैं। ये पाउडर है क्या? पाउडर। ये साबुत को ग्राइंड किया हुआ है, ये एक्चुअल में होता है ऐसे में। हम देख ठीक है, अब क्या चीज़ है, जब ये प्रिपेयर करेंगे ना आप, ये 4 कप पानी में 1 टीस्पून डालना है। जब ये वाला आप 1 टीस्पून डालेंगे ना, उस 1 टीस्पून में से पूरे 11 मसाले आएंगे नहीं। कोई एक बार आएगा, कोई 2 बार भी आ सकता है, कोई आएगा ही नहीं। इसी को ग्राइंड करके ये बनाइए, ताकि जब आप 1 टीस्पून डालेंगे तो सारे 11 मसाले 1 टीस्पून में आ जाए। ये इसमें यही है। जी जी मैडम, ये बनाने का प्रोसेस क्या है, नॉर्मल 4 कप पानी लेना है, इसमें से 1 टीस्पून ऐड करना है, 5 मिनट इसे बॉईल करना है, बस हो गया रेडी। कप उसमें स्ट्रेन करने के बाद आपकी मर्जी है, आप शुगर फ्री भी इसे पी सकते हैं, या शुगर ऐड के लिए आप इसमें शुगर या हनी ऐड कर सकते हैं। हमने अभी शुगर फ्री से बनाया हुआ है, इसमें बाद में हमने हनी और ड्राई फ्रूट्स ऐड किए। ये है फेस स्क्रब, ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स, और ये फेस सिरम।
ये एक्ने के लिए डार्क स्पॉट्स हो, ब्लैक हेड्स, पिगमेंटेशन, सनबर्न, सनटैन हुआ उसको रिमूव करता है। ये शाम के टाइम 2-3 ड्रॉप लेने हैं, चेहरे पे रब करके ओवरनाइट ऐसे ही रखना है, फिर मॉर्निंग में फेस वॉश करना है। इसको रब करके आप स्मेल भी चेक कर सकते वाओ, स्मेल दारुण देखो ना। हैं। ये क्रीम है, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, एंटी रिंकल मॉइस्चराइजर क्रीम है। ये स्क्रब है, एप्रिकॉट, वॉलनट और सैफरॉन से बना हुआ फेस। ये भी स्क्रब है, स्क्रब है। ये स्क्रब है, क्रीम है, ये फेस सिरम। ब्लैकबेरी, पंपकिन सीड्स और इसको हनी रोस्ट किया होता है। ये आप टेस्ट कीजिए। ये आप मिल्क के साथ भी ले सकते हैं, कर्ड के साथ भी ले सकते हैं, या ऐसे डायरेक्टली भी खा सकते हैं। ये ले सकते हैं। आपने कहा मैम, ये हेल्दी ब्रेकफास्ट है। তো তোমরা এই ভাইয়ার মুখেই শুনে নিলে যে কাশ্মীরের সমস্ত জিনিসের হেলথ বেনিফিট কী আছে। আমরা এত সব প্রোডাক্ট কিনেছিলাম, তার মধ্যে থেকে কিছু গিফটেরও ছিল, কিছু ঘরের জন্যও কিনেছিলাম। স্যাফরনটা অনেকটাই নিয়েছিলাম। স্যাফরনটা অত্যন্ত ভালো লাগলো, ওর স্মেলটাও খুব জোরদার লাগছিল। তো এই জিনিসগুলো শপিং করার পরে আমরা রওনা দিলাম আমাদের পরের গন্তব্যের দিকে, পেহেলগাঁওয়ের উদ্দেশ্যে। পেহেলগাঁওয়ে যাওয়ার পথে আমরা কিন্তু আরও একটা স্পট ভিজিট করেছিলাম, যেটা ছিল অ্যাপেলস গার্ডেন। যদিও অ্যাপেলের সিজন শেষ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ট্যুরিস্টদের দেখার জন্য ওরা গাছে কিছুটা করে অ্যাপেল রেখে দিত, আর হারভেস্টিংয়ের জন্যও কিছুটা রেখে দিত। তো সেই জন্য আমরা অ্যাপেলগুলো বাইরে থেকে, রাস্তা থেকেই দেখতে পাচ্ছিলাম। তারপর আমরা একটা বাগানে গিয়ে উঠলাম। खाने के लिए, फोटो वोटो के लिए। बाकी तो जो पीछे गार्डन है वो हार्वेस्ट कर सकते हैं। सितंबर अक्टूबर हार्वेस्ट अक्टूबर जब आपका दुर्गा पूजा का टाइम অ্যাপেলস গার্ডেনে গিয়ে এই বন্ধুটার সাথে দেখা হয়ে গেল, তো আমি তার সাথে কিছুটা সময় কাটিয়ে নিলাম। দেখতেই পাচ্ছ ওর মুখটা কতটা সুন্দর। তারপরে কিছুটা অ্যাপেল আমরা খেয়েছিলাম, মানে অ্যাপেল জুস। কিছুটা শপিংও করেছিলাম ওখান থেকে, অ্যাপেলের জ্যাম অ্যান্ড পিকল। তো এইগুলো শপিং করে আমরা ফের রওনা দিলাম, কারণ অনেকটাই দেরি হয়ে যাচ্ছিল। তো আমাদের আরও স্পট ভিজিট করার ছিল, যেগুলো আমরা হোটেলে লাগেজ রাখার পরে গিয়েছিলাম। কিন্তু তোমাদের সাথে শেয়ার করে দিই, হোটেলে যাওয়ার পরে যে আমাদের স্পটগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা ঠিক করে জানতাম না বলে আমাদের বেরোতে বেরোতে অনেকটাই লেট হয়ে গিয়েছিল, যেটার কারণে আমাদের খুব অসুবিধার মধ্যেই পড়তে হয়েছিল। অসুবিধাটা কী ছিল সেটা তোমাদের সাথে পরে শেয়ার করছি। পেহেলগাঁওয়ে ঢোকার পথে যে রিভারটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এই রিভারটা কিন্তু সিজন টাইমে মেন বৈশিষ্ট্য বহন করে এই পেহেলগাঁওয়ের সৌন্দর্যের। তো এই রিভারের নাম লিডার রিভার। এই নদীটি কিন্তু কোলাহই হিমবাহ থেকে উৎপত্তি। তো এর সৌন্দর্য কিন্তু পিক সিজনে, মানে যে গরমের সময়, খুব সুন্দর থাকে। তো আমরা যে সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত রয়ে গেলাম, কারণ যে সময় আমরা গিয়েছিলাম সেই সময় এই নদীটা প্রায় শুকিয়ে এসেছে। তো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এনজয় করতে করতে আমরা পেহেলগাঁওয়ে থাকার, মানে 2 দিন থাকার জায়গা মার্লিন রিসর্ট আর স্পাতে চলে এলাম। তো আমরা পেহেলগাঁওয়ে চলে এসেছি। এবারে হোটেলটা তোমাদের সাথে শেয়ার করে দেবো। আমাদের লাগেজ নামানো চলছে। তো তোমরা যেমনটা দেখতে পাচ্ছ, আমরা চলে এসেছি আমাদের পেহেলগাঁওয়ের রিসর্টে, যেটা হচ্ছে মার্লিন রিসর্ট অ্যান্ড স্পা।
তো এখানের ভিউটা তোমাদের সাথে শেয়ার করে দেবো। তার আগে আমাদের লাগেজ তোলা চলছে, তো রুমটা পাই, রুম ট্যুরটাও করাবো, তার সাথে হোটেলটাও দেখিয়ে দেবো। কিন্তু হোটেলের বাইরেটা দারুণ, আর এখানে বসার জায়গা আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছ এটা, তো ভিউটা তো দারুণ আসছে, বাকিটা দেখাবো তোমাদের সাথে। তো তোমাদের সাথে রুম ট্যুরটা শেয়ার করে দিচ্ছি। আমরা নিচের ফ্লোরে নিয়েছি কারণ আমি সিঁড়িতে অত উঁচুতে উঠছি না, তো কিন্তু ওপর থেকে ভিউটা খুব সুন্দর আসছিল। কিন্তু রুমগুলো খুব ভালো আছে, দেখছো একটা বেড পাতা রয়েছে, এখানটা একটা জায়গা আছে, এটা হচ্ছে এখানে তোমরা কিছু রাখতে পারো, এখানে চা কফির ব্যবস্থা আছে, টিভি আছে, এটা রুম হিটার আছে দেওয়া, এখানে ওয়ার্ড্রপ আছে একটা, আর ওয়াশরুমটা তোমাদের সাথে শেয়ার করে দিই, পরিষ্কার ওয়াশরুম, মিরর আছে, ড্রায়ার দেয়া আছে। তো এই হচ্ছে রুমটা ভালোই। আমরা এখন যাচ্ছি মেন পেহেলগাঁওয়ের পয়েন্টে, মানে মেন পয়েন্টটা পেহেলগাঁওয়ের মেন পয়েন্ট একটু ওপরের দিকে আছে, ওখানে হোটেলগুলো একটু এক্সপেন্সিভ, সেই জন্য আমরা এখানে আছি। আর এখানে হোটেল ভালো, সবই ভালো। তো চলো ওখানে কি ভিউ পাই তোমাদের সাথে সেটা শেয়ার করবো, দেখো। আমরা যেতে যেতেও জানতাম না যে আমাদের পরবর্তী গন্তব্যটা কোথায় ছিল, কতটা দূরত্ব অতিক্রম করে যেতে হতো। তো দুপুর হয়ে গিয়েছিল অনেকক্ষণই, খিদেও পেয়ে গেছে আমাদের। তো এখন একটা আমরা টুকটাকই খাবো, কারণ এখানে তাড়াতাড়ি ডিনার হয়ে যায়, তো সেই জন্য আমরা একটা রেস্টুরেন্ট, মানে ক্যাফে কাম রেস্টুরেন্টে এসেছি, সেখান থেকে কিছু খেয়ে নেবো। এই রেস্টুরেন্ট কাম ক্যাফে থেকে আমি আর তনুশ্রী খেয়েছিলাম মোমো, আর বাবারা খেয়েছিল ভেজ ফ্রাইড রাইস আর চিলি চিকেন। তো সবাই সবার লাঞ্চটা এখানেই কমপ্লিট করলো, তারপর গেলাম আমাদের পরের গন্তব্যের দিকে। তো ওই গন্তব্যে যাওয়ার জন্য আমাদের দেরিই হয়ে গিয়েছিল অনেকটা বেরোতে, কিন্তু পরে কি হতে চলেছে সেটা আমার কোনো আইডিয়া ছিল। একদম পাতলা, চিকেন ভরে দেয়, হাতটা ধোও। আমার শাশুড়ি মা এখানে কিছুই খায়নি, কারণ সকাল থেকেই তার শরীরটা একটু খারাপ ছিল, তো মা সমানে বলছিল কিছু খাবে না। তো খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট করে আমরা বেরিয়েছিলাম। এখানে রিভারটার দৃশ্যটা দেখছো কতটা সুন্দর, তাহলে ভাবো তো যদি পিক টাইমে, যখন সামার সিজনে হিমবাহ গলে নদীটা পরিপূর্ণ থাকে, তার দৃশ্যটা কতটা সুন্দর হয়। তো যাই হোক, আমরা পৌঁছে গেলাম আমাদের পরের গন্তব্যের, যেখান থেকে আমরা ভ্যালিগুলো এনজয় করার জন্য ঘোড়া রাইড করব সেই স্পটে। আমরা ফাইনাল ডিসাইড করলাম আমরা এই বাইসরান ভ্যালি আর দাবায়ান আর কাশ্মীর ভ্যালি এই তিনটেই যাব, এটা 2500 টাকা পার হেড পড়ছে। তো দেখি যাওয়া যাক, ওরা কিছু কম টম করছে না, বার্গেনিং করছে, তাও কম টম করছে না, দেখা যাক কি হয়। হ্যাঁ, সেই বাইসরান ভ্যালি, যেটা হচ্ছে পেহেলগাঁওয়ের মিনি সুইজারল্যান্ড বলা হয়। তো সেইটার জন্য ঘোড়া রাইডে প্রথমে যখন চড়লাম, আমাদের কোনো আইডিয়াই ছিল না এর ডিস্টেন্সটা কতটা হতে পারে, কতটা হতে চলেছে। কিন্তু প্রথমে ওনারা আপত্তি জানিয়েছিলেন যে আমি যেহেতু 1.5 মান্থ প্রেগনেন্ট ছিলাম, তো ওনারা প্রথমে বলছিলেন যে না, আমরা কোনো রিস্ক নেব না। তারপরে বললেন যে আমরা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে যাব, রাস্তা ভালো, কারণ আমরা যে শর্টকাটের রাস্তা দিয়ে যাই সেটা রাস্তাটা অতটা ভালো না, যেটা ভালো রাস্তা আছে সেটা দিয়ে আমরা নিয়ে যাব। তো
কোনো অসুবিধা হবে না আপনার। তো আমরা সেই মনের জোরে এগোলাম। তা প্রথম দিকে রাস্তা অত্যন্ত ভালোই আমরা পেয়েছিলাম, কিন্তু যারা বাইসরান ভ্যালিতে আসো তাদেরকে বলে রাখি এই রাস্তাটা কিন্তু অনেকটা ঘুরপথ আর অনেকটা টাইম সাপেক্ষ। মানে টাইম সাপেক্ষ বলতে এই রাস্তাটা কিন্তু প্রায় 2.5 থেকে 3.25 ঘন্টা আমাদের লেগে গিয়েছিল। এটা ছিল আমাদের ফার্স্ট ভিজিট পয়েন্ট। তারপরে আমরা চলে গেলাম বাইসরানের দিকে, কিন্তু আমাদের অনেকটাই দেরি হয়ে যাচ্ছিল। এবারে এই 20 মিনিটের রাস্তাটা তোমরা একবার দেখো, সাংঘাতিক মানে উঁচু নিচু রাস্তা। এই রাস্তা থেকে পড়ে গেলেও তোমার অ্যাক্সিডেন্ট হওয়া বাধ্য। আমি বেশি ভিডিও করতে পারিনি কারণ আমি ক্যামেরা ধরে রাখতে পারিনি। এই ক্লিপটা আমি তনুশ্রীর থেকে নিয়েছিলাম। এবার বলি, এই তো আমরা পৌঁছালাম বাইসরান ভ্যালিতে, কিন্তু প্রচণ্ড ঠান্ডা ছিল। যে যখন আমরা পৌঁছেছি তখন কিন্তু অনেকটাই সন্ধ্যের দিকে হয়ে আসছে, তো ভিউটা আমরা সেরমভাবে এনজয় করতে পারিনি। এবার বলে রাখি, এই মিনি সুইজারল্যান্ড যাওয়ার যে মেন রাস্তা, যেটা 30 মিনিটসের রাস্তা, সেটা কিন্তু পুরোটাই এই খাড়াই রাস্তা ছিল। আচ্ছা, এই খাড়াই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার জন্য তোমরা কিন্তু নিজেদের রিস্কে যাবে। বাইসরান ভ্যালি বা মিনি সুইজারল্যান্ড ছাড়াও কিন্তু অনেক সুন্দর জায়গা আছে, যেটা তোমরা পরের ভিডিওগুলোয় দেখবে। তো বলে রাখি, তোমরা আইডিয়াই করতে পারছো না, কারণ এই ভিডিওয় অত ক্লিপ আমরা তুলতে পারিনি কতটা খাড়াই রাস্তা ছিল। আর দেখতেই পাচ্ছ আমাদের ফিরতে ফিরতে কতটা রাত হয়ে গেছে। তো সেই মতন করে তোমরা যেও। এতটা খাড়াই রাস্তাতে আমার মনে হয় না যাওয়াই ভালো। সবসময় নিজের লাইফটা আগে, লাইফ সিকিওর, তো তোমরা আবার ঘুরতে আসতে পারবে। সেই বলতে গেলে আমরা কিন্তু মিনি সুইজারল্যান্ড সেইভাবে এনজয়ই করতে পারিনি। জানি ভিডিওটা অনেক লেন্দি হয়ে গেল, কিন্তু পেহেলগাঁওয়ের প্রথম দিনের ব্লগটা আমি কেটে কুটে এইটুকুনি তোমাদের সাথে শেয়ার করতে পেরেছিলাম, যেটুকুনি শেয়ার না করলেই নয়। কারণ তোমাদের জানানোটা খুব দরকার ছিল। টাইমে না বেরিয়ে আমরা কি বিপদে পড়েছিলাম, আর তার চেয়ে বড় কথা যে আমরা না জেনে এই রাস্তাতে এসেও কতটা বড় ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছিলাম। আর এই মিনি সুইজারল্যান্ড যাওয়ার জন্য কিন্তু অনেক রকম স্ক্যাম চলে, সেটার থেকেও একটু সাবধান। যেমনটা দেখলে আমরা ঘুরতে গিয়েছিলাম, কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে আমাদের ফিরতে ফিরতে অনেকটাই রাত হয়ে গেছে। আমরা ফ্রেশ হয়ে একটু বসেছিলাম, তারপরে খাবারটা জন্য ফোন এসছে যে খাবার রেডি হয়ে গেছে। তো এখানেও বাফেট সিস্টেম, তো আমরা এখন খেতে যাচ্ছি। খিদেও পেয়ে গেছে, খেয়ে দিয়ে একটা লম্বা ঘুম দেবো। আজকে খুব হেক্টিক ডে ছিল। তো চলো খাবারে কি কি আছে দেখিয়ে দিই তোমাকে। এই হচ্ছে রেস্টুরেন্টটা ওদের। বেশ ঠান্ডা পড়েছে, কি কি মেনু আছে দেখে নিই। তো ডিনারে একটা সবজি ছিল, তার সাথে সুইটে ছিল ফিরনি, আর ছিল কারি, পনির ভুর্জি, তার সাথে ছিল রাজমার ডাল, আর আমাদের ছিল রাইস, তার সাথে চিকেন, স্যুপ আর স্যালাড। আজকে চলি, সবাইকে টাটা।